Dear students, today I will start my lecture on the subject of the parasitology. So today I will tell you the different type of the terms used in the parasitology. बेटा ये वो टर्मिनोलॉजी है जो आपके जब आप बुक पढ़ेंगी किताब पढ़ेंगी वो टर्मिनोलॉजी आपके यहाँ बार बार आएगी. So let us first of all clear the terms which are used in the parasitology. Parasitology. It is one of the branch of the subject microbiology. There are 4 branches of the microbiology: bacteriology, virology, parasitology, and mycology. So terms used in the parasitology. Parasite. Parasite means parasite means to take from another stable. To take from another's plate. दूसरे की प्लेट से खाना खा लेना उसको कहते हैं पैरासाइट. जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में an organism which receives nourishment and shelter from the host without causing any type of the injury or giving anything without giving anything in the return. Just he takes the food from his plate, but he is not going to harm him, injure him. Or organism which is entirely dependent upon the another organism. That is known as the parasite. Parasitism. It is a type of the relation between the host and the parasite, in which parasite gets benefit, gets food, gets shelter, and host in return always suffers some sort of the injury. That is known as the parasitism. मीन्स इसमें क्या होता है पैरासाइटिज्म में, वो जो पैरासाइट है वो खाना खाता है, उसके अलावा होस्ट को बीमार कर देता है. तो रिलेशन बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट, इन व्हिच पैरासाइट गेट्स बेनिफिट and host in return always suffers from some sort of the injury. That is known as the parasitism. What is host? Host means an organism which harbors the parasite is known as the host. Host वो है जो पैरासाइट को न्यूट्रिशन देता है, खाना खिलाता है, पैरासाइट को शेल्टर देता है. That is known as the host. Means it provides nutrition and shelter to the host. Organism which harbors the parasite is known as the host. Host is always bigger than the parasite. Definite host, an organism which harbors the adult stage of the parasite. Here, parasite uses the sexual method of the reproduction. Organism which harbors the adult stage of the parasite, that is known as the definite host. What is intermediate host? An organism which harbors the larval stage of the parasite is known as the intermediate host. किसी पैरासाइट में एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है, किसी पैरासाइट में 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, किसी पैरासाइट में 3 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं. तो जब भी आई विल डिस्क्राइब द सब्जेक्ट पैरासिटोलॉजी और द ऑर्गेनिज्म, देन आई विल गो इन द डिटेल. व्हाट इज पैराटेनिक होस्ट? कैरियर और द ट्रांसपोर्ट होस्ट. द होस्ट in which larval stage of the parasite survives. Means that stage, larval stage remains viable without further development.
means this type of the parasite does not grow under any type of this development. That is known as the carrier or the transport host. Reservoir host, a host which harbors the parasite and serves as an important source of infection to the other susceptible host. जैसे सल्मोनेला टाइफी है, उनकी रिजर्वायर प्लेस कौन सी है? गाल प्लेट, वहाँ उसी में रहता है। अच्छा, उसी खुद को बीमार नहीं करेगा, but that will transmit the infection to the other susceptible host. जो उनके जिद में आएंगे, जो उनके आगे आएंगे, उनको बीमार करेगा। That is known as the reservoir host. Symbiosis. Symbiosis, a parasite which contributes for the welfare of the host, means an association in which both parasite and host are dependent upon each other and both are benefited. दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, that is known as the symbiosis. जैसे husband और wife है, they pass a symbiotic life. Symbiosis means an association between the parasite and the host, in which both are dependent upon each other and they give benefit to each other. Commensalism, a parasite which does not damage the host, means an association in which only parasite derives benefit without causing any type of injury or any type of the benefit to the host. That is known as the commensalism. बेटा दोबारा समझाता हूँ। ये देखिए अंदर सिम्बियोसिस में हमने क्या पढ़ा? सिम्बियोसिस में हमने ये पढ़ा कि होस्ट और पैरासाइट एक दूसरे के लिए लाजमी है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तीसरा, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, फायदा देते हैं। कमेंसलिज्म में क्या है? उसमें सिर्फ जो पैरासाइट है only gets the benefit without causing any type of injury or without giving any type of the benefit to the host. That is known as the commensalism. But vector is just like vehicle, just like a transport in which the parasite sits and it transmits a disease to the host. जैसे उस गाड़ी में यहाँ बैठा ट्रांसपोर्ट में, वैन में, अपनी गाड़ी में या बस में, जैसे कैंपस चला गया, वहाँ जाके इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट किया, किसी को वेक्टर कहते हैं। या एक बंदा नवासा में रहता है, अभी वो कराची जा रहा है, इन्फेक्टेड है, वहाँ जाके कराची वालों को इन्फेक्शन देगा, इन्फेक्टेड करेगा। That is known as the vector. Vector is an organism, a substance part of the organism which transmits the disease to the host. There are two types of the vectors, biological vectors and mechanical vectors. Biological vectors. These are the true vectors. In these vectors, parasites undergo development and the multiplication. कैसे? जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या डिजीज कराता है? एक मलेरिया कराएगा, दूसरा फिलेरियसिस को ट्रांसमिट करता है। इनका वेक्टर कौन हुआ? मॉस्किटो हुआ। मलेरिया का वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। फिलेरियसिस का वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। किस टाइप का वेक्टर है? बायोलॉजिकल। सेंड फ्लाई क्या करते हैं? कौन सी डिजीज करते हैं? काला काज। मीन्स सेंड फ्लाई विल एक्ट एज ए vector of the kala kaज. CC fly, they are associated with a disease which is known as the sleeping sickness. Redovid bugs, they are associated with the disease that is known as the Chagas disease. What is the Chagas disease? What is the Chagoma?
while I will discuss the trypanosome or leishmaniasis, then I will go into detail. If I take classes on the leishmania and trypanosome, if another takes the classes, Dr. Sikandar Syal Saab, then he will explain what is the Chagas, what is the Chagoma, what is the Chagas disease. Ticks, जैसे Babesia microtia, these are associated with the disease that is known as the babesiosis. This is a minor protozoa. Mechanical vector. Some arthropods which transmit the infective parasite mechanically without multiplication and development are known to be mechanical vector. Accidental parasite, an organism that attack the unusual host. For example, what is the example of the accidental parasite? Echinococcus granulosus. Why? Because this parasite takes a very long time to bear the disease like a hydrated cyst in one of the commonest sites that is known in the liver or the other common other sites, lung हुआ, brain हुआ, pelvic cavity हुआ, उसमें होती है. What is the habitat? Habitat means natural abode or place of residence. Common site of occurrence means habitat means ये जो पैरासाइट है उनके घर कहाँ है. अबोर्ड माना ABOD, अबोर्ड माना घर कहाँ है, हाउस कहाँ है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है, कॉमन साइट ऑफ अकरेंस कहाँ है. झोपड़ी में रहता है, बड़े बंगले में रहता है, बड़े महल में रहता है, कहाँ रहता है, उनकी कॉमन साइट कौन सी है, जिसको हैबिटेट भी कहते हैं, जिसको अबोर्ड भी कहते हैं, ABODE. कैरियर, होस्ट, होस्ट कौन होता है, जाहिर पर्सन ही होता है, which carry certain parasites without displaying any sign or symptoms. एक आपके घर में बावर्ची है, काम कर रहा है, मैंने कहा था ना, रिजर्वायर किले से सल्मोना टाइफी की वो गाल ब्लेडर है, उसी खासकर these are common in the cooks, कुक में खासकर सल्मोना टाइफी कॉमन होता है जो गाल ब्लेडर में जाता है. ठीक है, वो कहता है वो उनको अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो डिजीज ट्रांसमिट करेगा टू दी अदर पीपुल या पीपुल ऑफ द होम, जो घर में जहाँ काम करता है, खाना खाता है, उसी आदमी में वो डिजीज को ट्रांसमिट करेगा. दैट इज नोन इज द कैरियर. कैरियर मीन्स ए होस्ट और ए पर्सन व्हिच कैरी सर्टेन पैरासाइट्स without displaying any sign or the symptom. Incubation, a time between entrance of the parasite or the microorganism into the host and appearance of the sign and symptom or the clinical feature. एक मच्छर ने बाइट कर दिया है, डंक मार दिया, जब साइन सिम्टम अपीयर हो तब उसको मलेरिया बुखार होगा. इसी पीरियड को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड. जैसे मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, उसी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 72 आवर्स है, किसी का शायद 48 आवर्स है, वो आप बुक में जरूर देख लेना, या जब भी लाइफ साइकिल हम डिस्कशन करेंगे मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीशीज का, उसमें डिस्कशन करेंगे. मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट्स. मुख्तलिफ पैरासाइट हैं जो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन कराते हैं. जैसे कुछ पैरासाइट ऐसे हैं, टाइप ऑफ द पैरासाइट which lead to the infection by ingestion of the eggs. कुछ पैरासाइट ऐसे हैं which lead to the infection by larval penetration, जैसे मलेरियल पैरासाइट, हिस्टोसोम्स वगैरह हैं. वो कौन से पैरासाइट हैं, कौन से पैरासाइट किस मूड ऑफ एक्शन से डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, वो डिस्कशन करेंगे. देखना अभी कौन से पैरासाइट हैं which lead to the infection by ingestion of the cyst. कौन से पैरासाइट हैं
जो सिस्ट को इंजेस्ट करके इन्फेक्शन कराते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जार्डिया लैम्बिया, आइसोस्पोरा बिल्ली, वेलेंटिडियम कोलाई, टॉक्सोप्लाज्मा गुंडी, क्रिप्टोस्पोरिडियम। जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, उसकी जो नेचुरल सिस्ट हैं उसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। जब उसके 4 नेचुरल न्यूक्लियस नहीं होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे तब भी अमेबिक डिसेंट्री नहीं होगी, 3 न्यूक्लियस होंगे तब भी अमेबिक डिसेंट्री नहीं होगी। कम अज कम 4 न्यूक्लियस लाजमी होने चाहिए, which lead to the infection. The 4 nucleus present in cyst of the amoeba histolytica are known as the quadrinucleate cyst. Giardia lamblia, Isospora pilli, Valentinum coli, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium. Beta, these are the type of the BC2 question also. Caise, which one of the following parasite lead to the infection by ingestion of the cyst? कौन से पैरासाइट है which lead to the infection by ingestion of the eggs of the parasite? देखना, इसको 2 ग्रुप में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। एक है, उनका फार्मूला मैंने खुद बनाया, उसका है टी, चाय, तो चाय पीते हैं TEA। तो दूसरा है डी, THE। ये जो ऊपर वाला फार्मूला टी है चाय वाला, उसमें कौन से पैरासाइट आएंगे जो इन्फेक्शन कराते हैं थ्रू इंजेक्शन ऑफ द एग्स? ट्राइचूरस ट्राइचूरिया, इंटीरोबिस वर्मिक्यूलरिस, एस्करिस लम्ब्रिकस। बेटा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ट्राइचूरस ट्राइचूरिया, इंटीरोबिस वर्मिक्यूलरिस एंड एस्करिस लम्ब्रिकस। इनके जो एग्स हैं, they contain a infective larva, so the eggs are the infectious for the patient. दूसरा कौन सा ग्रुप है? दी, टीनासोलियम। वो 2 तरफ से इन्फेक्शन कराता है, एक लार्वा के थ्रू, थोड़ा एग्स के थ्रू कराता है। और दूसरा एच नाना, हाइमुनोलेपस नाना एंड इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। Overall, these are the type of the parasite which lead to the infection through the ingestion of the eggs. कौन सी तरफ दोबारा रिपीट करता हूँ मैं? ट्राइचूरस ट्राइचूरिया, इंटीरोबिस वर्मिक्यूलरिस, एस्करिस लम्ब्रिकस, टीनासोलियम, एच नाना, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस. Again, these are the type of the BCQ question. Means which one of the following parasite lead to the infection by ingestion of the eggs? 2 ग्रुप हो गए, एक इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट, दूसरा इंजेक्शन ऑफ द एग्स। तीसरा ग्रुप कौन से पैरासाइट है? नेम द पैरासाइट which will lead to the infection by larval penetration. कौन से पैरासाइट जो लार्वल पेनिट्रेशन की इन्फेक्शन कराती है? लार्वा पेनिट्रेट करता है ना, डंक मार के अंदर चला जाता है। क्या करता है? जैसे सांप का डंक होता है, तो डंक मार के ह्यूमन बॉडी में अंदर चला, उसको कहते हैं लार्वल पेनिट्रेशन। एक है हुकवर्म्स, जिसके 2 टाइप है, एंकाइलोस्टोमा जुडिनेम एंड नेक्टर अम्ब्रिकेनस। These are known as the hookworms. These are the ones which are associated with iron deficiency in India. Actually, this group of the parasite is associated with the rural type of the children with barefooted, जिसके पाँव में जूते नहीं होते, शूज नहीं होते, उसी लार्वल पेनिट्रेशन का इन्फेक्शन कराते हैं, लीड टू द आयरन डेफिशिएंसी। दूसरा है शिस्टोसोम हेमेटोबियम, तीसरा है स्ट्रैंगलाइड स्टरकोरलिस एंड कुटेनस लार्वा माइग्रेंस। यहाँ बेटा इस पर कभी कभार कोई डेंजरस बीसीक्यू आ सकता है। One of the following parasites lead to the infection by larval penetration. कौन से? हुकवर्म हो गया, कभी कभी हुकवर्म दोनों का नाम साथ में लिखते हैं, कभी कभी एक नाम लिखते हैं, एंकाइलोस्टोमा जुडिनेम
या कभी एक ही नाम लिखते हैं, नेक्टर हम लिखते हैं, हुकवर्म, शिस्टोसोम हेमेटोबियम, स्ट्रंगलाइट स्टरकोरलिस एंड कुटेनस लार्वा माइक्रोन। तीसरा ग्रुप हो गया। चौथा ग्रुप, द इंजेक्शन ऑफ द पैरासाइट इटसेल्फ, कौन से पैरासाइट है which lead to the infection by injection of the parasite itself। अब पैरासाइट को इंजेक्ट करेंगे, खा जाएंगे, उसी वजह से इन्फेक्शन हो। कौन से पैरासाइट हैं जो खाने के साथ अंदर चले जाते हैं, which lead to the infection। Pilonorchis sinensis that is ingested with the raw fish। और दूसरा पैरागोनिमस वेस्टरमेनाई, this is ingested with the food with क्रेब, हम जिसको खेकड़े कहते हैं या प्राण वगैरह खाते हैं या क्या। तो these are the two of the parasite which lead to the infection, the ingestion of the parasite, because these are the roots of the infection of the parasite in the host। होस्ट को पैरासाइट किन तरीकों से नुकसान पहुंचाता है, बीमार करता है या डिजीज देता है या डिजीज करवाता है। पैरासाइट एक ग्रुप है पैरासाइट का which lead to the infections by deposition of the larva on the skin। उसको कहते हैं टिश्यू नीमेटोड्स। ये क्या करते हैं, इस पैरासाइट का ग्रुप है, वो अपने लार्वा जो होते हैं उनकी डिपोजिशन कराता है, उनको जाके ले करता है, स्किन के ऊपर जाके बैठ जाता है, वहाँ से लार्वा स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं, लीड टू द इन्फेक्शन। कैसे, जैसे बुचेरिया बैंक्रोस्टी, उसका जो वेक्टर है वो मॉस्किटो है। आन्कोसर्का बल्यूलस, उनका जो वेक्टर है ब्लैक फिलाई है। लोआ लोआ, जिसको मैंगो फिलाइड कहते हैं, जिसको डियर फिलाइड कहते हैं। डियर कहते हैं हिरन को, हिरन को डियर कहते हैं। So these are the three of the parasites which are known as the tissue nematodes। These are the parasites whose vector deposit the larva on the skin and lead to the various type of the disease। जैसे बुचेरिया बैंक्रोस्टी है, that is associated with the filariasis। When I will discuss one by one, then I will do the postmortem of this type of the parasite। Operculated eggs, कौन से पैरासाइट है जिसके एग्स के ऊपर एक ढकना होता है, या जैसे आप घर में देगची को ढक दे के रखिए खराब न हो जाए चीज या क्या, तो एक पैरासाइट के एग्स ऐसे हैं, उसको कहते हैं अपरक्यूलेटेड एग्स। कौन से पैरासाइट है जिनके एग्स अपरक्यूलेटेड है। जब भी अपरक्यूलेटेड एग का हम पैरासाइट डिस्कशन करेंगे, I will show you the picture of the upperculated eggs। वो कौन से पैरासाइट है जिनके एग्स जिनके अपरक्यूलेटेड हैं। एक पिलोनार्किस साइनेंसिस, दूसरा पैरागोनिमस वेस्टरमेनाई, तीसरा है डीलेटम डाइफाइलोबोड्रम लेटम। बेटा दोबारा, पैरासाइट विथ अपरक्यूलेटेड एग्स, पिलोनार्किस साइनेंसिस, पैरागोनिमस वेस्टरमेनाई, डाइफाइलोबोड्रम लेटम। These are the parasites which have not the upperculated eggs। फिलेरिफॉर्म लार्वा, कौन से पैरासाइट हैं जिसके लार्वा को फिलेरिफॉर्म कहते हैं। एक हुकवर्म है, दूसरा स्ट्रंगोलाइड स्टरकोरलिस। आपको पता होगा ना स्ट्रंगोलाइड स्टरकोरलिस, ये कौन सा पैरासाइट है, इसमें वो पैरासाइट है जैसे हजरत बीबी मरियम और हजरत ईसा का चक्कर है, जो उनका बाप नहीं था, इनका भी यही चक्कर है, स्ट्रंगलाइट स्टरकोरलिस का कहते हैं। तो ये जब भी डिस्कशन करेंगे तो इनके बारे में आपको मजेदार एक दो रीजन बताऊंगा। लार्वा विथ देयर नेम्स, जैसे हुकवर्म है, हुकवर्म में जो लार्वल पेनिट्रेशन होती है, पेनिट्रेशन के थ्रू लार्वा इन्फेक्शन कराते, जो लार्वा होता है उसका नाम है फिलेरिफॉर्म लार्वा। जो टीनिया सजरीटा, ये टाइप ऑफ द सीस्टोड्स, टीनिया सजरीटा के लार्वा को क्या कहते हैं,
सिस्टीन सर्काई बोविस। टीनिया सोलियम ये सीस्टोड का एग्जाम्पल है। उनके लार्वा को क्या कहते हैं? सिस्टीन सर्काई सेल्यूलोसा। ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, इसको गिनी वर्म, डेजर्ट वर्म, मदीना वर्म कहते हैं। उसके लार्वा को क्या कहते हैं? कोकपोड। डाइफाइलोबोड्रम लेटम के लार्वा को क्या कहते हैं? पिल्यूरोसर्कॉइड। स्टंगराइड स्टरकोरलिस के लार्वा को क्या कहते हैं? फिलेरीफॉर्म लार्वा। अब फिलेरीफॉर्म लार्वा किस किस को कहते हैं? एक हुकवर्म को और दूसरा स्टंगलाइड स्टरकोरलिस को। So these are the parasites whose larva with their names. एक लार्वा मेटासर्केरिया लार्वा। कौन से पैरासाइट हैं? which contain the मेटासर्केरिया लार्वा, जैसे पैरागोनिमस रेस्टरमेनाई, किलोनार्किस साइनेंसिस, फेशोला हेपेटिका एंड फेशोला बस्की। Fasciola hepatica, it is a common parasite of the liver. Fasciola boschi, it is a common parasite of the large intestine. Pilonorchis sinensis, it is also parasite of the liver. It is also known as the Asia worm. It is also known as the Chinese worm. Paragonimus lestermanni. This is the parasite. Common site is the lung. So let us classify the parasitology. But I will do the postmortem of the classification of the parasite. बेटा जरूर इसको ध्यान से सुनो। इसको ये जो मैंने आपको अब तक बताया है टर्मिनोलॉजी, ये आपके इंटरेक्टिव वायरा में पूछ सकते हैं, या मैंने आपको मोड ऑफ इन्फेक्शन बताया है उनके बारे में पूछ सकते हैं। कौन से पैरासाइट हैं एक से थ्रू इन्फेक्शन कराते हैं, कौन से पैरासाइट हैं सिस्ट इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्शन कराते हैं, कौन से पैरासाइट हैं लार्वा के थ्रू इन्फेक्शन कराते हैं, या खासकर और क्वेश्चन को लो लेवल तक ले जाएंगे। जो इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं, अच्छी मार्क लेना चाहते हैं, पूछेंगे तो टीनिया सजिलिटा के लार्वा को क्या कहते हैं, टीनिया सोलियम के लार्वा का क्या नाम है, मैंने आपको बेटा बताया ना। हाँ, तो ये आप ध्यान रखें। So I will start the classification of the whole parasitology. So parasitology is divided into the three groups. कौन से बेटा? तीन ग्रुप हैं, तीन कैटेगरीज हैं। एक है प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी मीन्स a branch of the parasitology which is associated with the disease of the protozoa. कौन से प्रोटोजोआ है, उनके कौन से ग्रुप हैं, कौन से एग्जाम्पल हैं, इनका मैं पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। दूसरा है मेट्रोजोलॉजी। मेट्रोजोआ मीन्स helminths, which is a branch of the parasitology which deals with the disease of the helminths. Helminths means worms। इसी वर्म्स के दो टाइप हैं। एक है फ्लैट वर्म्स जिसको सीस्टोड या टेप वर्म कहते हैं, दूसरा है नीमेटोड्स जिसको राउंड वर्म कहते हैं। ये हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो ग्रुप है उसका नाम है एंटामोलॉजी। इट इज एसोसिएटेड विद द डिजीज ट्रांसमिशन विद आर्थ्रोपोड्स। ये जो ब्रांच है एंटामोलॉजी, वी विल नॉट डिस्कस इन द पैरासिटोलॉजी, दैट वी डिस्कस इन द community medicine, where the professors, where the faculty of the community medicine. Here in my subject, we will only discuss the protozoa and the metazoa are the helminths. बेटा इनको फर्दर क्लासिफाई करेंगे कैसे? जैसे फाइलम प्रोटोजोआ है, फाइलम उसका कितने क्लास हैं? कि 4 क्लास हैं फाइलम प्रोटोजोआ की। कौन से? एक है राइजोपोडा, दूसरा है ज़ूमेस्टिगोफोरा, तीसरा है स्पोरोजोआ और चौथा है सीलिएटा। राइजोपोडा उसका सुपर क्लास या सब फाइलम कौन सा होगा? तो उसको कहते हैं सर्कोडीना। व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ द सर्कोडीना? ये आगे चल के देखना, ध्यान में रखें। ज़ूमेस्टिगोफोरा
जिसको हम फ्लैजिलेट्स कहते हैं। These are the parasites, they are very motile, उसको कहते हैं। उसका सुपर क्लास सब फाइलम कौन सा है? मेस्टिगोफोरा। तीसरा है स्पोरोजोआ, उसका सुपर क्लास कौन सा है? सब फाइलम कौन सा है? टीलोस्पोरा। सीलिएटा, उसका सुपर क्लास सब फाइलम कौन सा है? सीलियोफोरा। बेटा ये वायवा में जो इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं जिसको अच्छे नंबर चाहिए जरूर मैं पूछूंगा। राइजोपोडा क्लास का सुपर क्लास कौन सा है? सब फाइलम कौन सी है? स्पोरोजोआ क्लास प्रोटोजोआ फाइलम का सब फाइलम या सुपर क्लास कौन सा है? ये ध्यान में रखिए। क्लास राइजोपोडा, ये दो स्पीशीज आप मेरे बताओ। राइजोपोडा पीछे जाए, ये देखना, ये बता रहे हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ में 4 क्लास हैं। कौन से? एक राइजोपोडा, दूसरा ज़ूमेस्टिगोफोरा, तीसरा स्पोरोजोआ, चौथा है सीलिएटा। इनको बारी बारी डिस्कशन करेंगे। राइजोपोडा स्पीशीज, उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं जिसको हम सर्कोडीना कहते हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में कौन से पैरासाइट आएंगे? काइलोमेस्टिक्स, जार्डिया लेम्बलिया, ट्राइकोमोनास होमिनिस, माउथ में होता है। ग्रुप डी में कौन से ये आएंगे? राइजोपोडा स्पीशीज जिसको सर्कोडीना कहते हैं हम। लीशमैनिया, ट्रिपनोसोम, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा कोलाई, आइडोअमीबा बसशाई, डाइट अमीबा फ्रेजिलस, एंट अमीबा हार्टमेनाई, एंडोलीमिक्स। ये दो ग्रुप हैं इसके कौन से क्लास के? राइजोपोडा की। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सर्कोडीना। इनके दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। देखिए बेटा दूसरा क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा किसका? फाइलम प्रोटोजोआ का। ज़ूमेस्टिगोफोरा जिसको फ्लैजिलेट्स कहते हैं, मील्स मोटाई, जार्डिया लेम्बलिया, जार्डिया इंटेस्टिनलिस, ट्राइकोमोनास वजाइनलस, ट्राइकोनोमा होमिनिस, ट्राइकोनोमा टीरियक्स, टीथ और गम में होता है, ट्रिपनोसोम्स, लीशमेनिया, काइलोमेस्टिक्स, मेसनीलाई, सीकम में होता है। हाँ, कभी कभार क्वेश्चन को स्पेसिफाई करें, पूछे व्हाट इज द कॉमन साइट ऑफ द काइलोमेस्टिक्स मेसनीलाई, ऑफ सीकम कहेंगे, या कॉमन साइट ऑफ द क्या कहते हैं टीनिया टीनेक्स ऑफ टीथ और गम कहेंगे, या ट्राइकोमोनास होमिनिस की कॉमन साइट कौन सी है? इलियोटिकल रीजन। बेटा ये बीसीक्यू में आप सकते हैं और आपसे इंटरेक्टिव जुबानी करानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा क्लास स्पोरोजोआ, जिसको टीलोस्पोरा कहते हैं, डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप। इसके 2 ग्रुप हैं। एक है कोक्सीडिया ग्रुप। कोक्सीडिया ग्रुप में कौन कौन से पैरासाइट आते हैं? जैसे आइसोस्पोरा बिल्ली हो गया, आइसोस्पोरा बोमिनी आ गया, सर्कोसिस्टिस लिंडमेना आ गया, टॉक्सोप्लाज्मा गुंडी आ गया, क्रिप्टोस्पोरिडम आ गया। ये जो नाम मैंने बताए 5 बीजाती कोक्सीडिया ग्रुप ऑफ द क्लास स्पोरोजोआ। उसमें हलाती मासी ने खुदा ने कहा कि किसी को आ न जाए। दूसरा ग्रुप हीमोस्पोरिडिया, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम स्पीशीज। उर्फ आम में उनके बेटा 4 स्पीशीज हैं, 4 टाइप हैं प्लाज्मोडियम के, लेकिन एक टाइप अभी नियर फ्यूचर में डिस्कवर हुआ है, वो बताऊंगा। कौन से 4 कॉमन टाइप हैं? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेन्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। जो 5वीं टाइप है वो प्लाज्मोडियम नालेसी। क्या? प्लाज्मोडियम नालेसी। देखना बेटा अभी 5 हो गए। दोबारा बेटा मैं नाम लेता हूँ, ये पूछता हूँ हर स्टूडेंट से कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज के नाम बताओ। एक नाम पूछता हूँ, दूसरा डिजीज कौन से कराते पूछता हूँ। देखना नाम कौन से हैं, दोबारा बेटा रिपीट करता हूँ। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। बेटा जो दो ऊपर वाले हैं प्लाज्मोडियम falciparum और प्लाज्मोडियम vivax, these are very common in Pakistan, while two of the parasites Plasmodium ovale and Plasmodium malariae, these are common in the Africa but not in our country Pakistan। तीसरी बात है जो चारों में इम्पोर्टेंट या डेंजरस जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज है वो प्लाज्मोडियम falciparum है। अब उनके डिजीज के बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। याद है जब इनको डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन को उसमें उनका पोस्टमार्टम करके रखेंगे। अगर मैंने पढ़ाया तो फिर देखना मैं कहाँ तक जाता हूँ। प्लाज्मोडियम falciparum कौन सी बेटा डिजीज कराता है? मेलिग्नेंट टर्शन मलेरिया। एक मैं आपको बेटा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं गया था डाउ यूनिवर्सिटी कराची में एग्जाम लेने के लिए। वहाँ एक लड़की आई, बेड से मुझे कहा कि आई एम पोजीशन होल्डर। चुप करो, बकवास नहीं करो। 2-3 मिनट के बाद मैंने कहा क्या पूछूं? उसने मुझे खुद ही कहा पैरास्टोलॉजी पूछा उससे। मैंने कहा बताओ प्लाज्मोडियम स्पीशीज के कितने स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम के? 4 नाम बताए फलां फलां। फिर मैंने पूछा प्लाज्मोडियम falciparum कौन सी डिजीज करवाता है? प्लाज्मोडियम vivax कौन सी डिजीज कराता है? प्लाज्मोडियम ओवेल कौन सी डिजीज कराता है? प्लाज्मोडियम मलेरी कौन सी डिजीज? वो कहेगा मलेरिया कराता है। चारों बोले मलेरिया कराता है। बेटा इसको आप थोड़ा समझना। जैसे प्लाज्मोडियम 4 स्पीशीज हैं, 4 टाइप हैं, 4 किस्म के लीजन, 4 किस्म के डिजीज कराते हैं। कैसे बेटा? जैसे प्लाज्मोडियम falciparum है, कौन सी डिजीज कराता है? डिजीज का क्या नाम है? मेलिग्नेंट टर्शन मलेरिया। प्लाज्मोडियम vivax से कौन सी डिजीज कराता है? बिनाइन टर्शन मलेरिया, डिजीज का नाम है। प्लाज्मोडियम ओवेल कौन सी डिजीज कराता है? बिनाइन टर्शन मलेरिया। 2 स्पीशीज प्लाज्मोडियम vivax, प्लाज्मोडियम ओवेल, दोनों क्या कराते हैं? बिनाइन टर्शन मलेरिया कराते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम मलेरी है बेटा कौन सी डिजीज कराता है? उसको कहते हैं क्वार्टरन मलेरिया। आप इसका फार्मूला बनाएंगे MQM होगा, मलेरी क्वार्टरन मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरी क्वार्टरन मलेरिया। तो दीज आर दी 4 स्पीशीज। बेटा इसी तरह से आप याद करें। हाँ अगर मैंने प्लाज्मोडियम स्पीशीज पढ़ाया तो मैं इसके आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर कोई दूसरा डॉक्टर सिकंदर सर पढ़ाते हैं तो वो आपको इंशाल्लाह अच्छा बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज द वेट प्लीज। ये अब हले कौन तो अकेले खड़ा है ने वेट प्लीज वेट। हाँ तो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्लाज्मोडियम। चौथा ग्रुप है सीलिएटा, जिसको कहते हैं कीलोस्पोरा आदि सीलियोफोरा। उनका कंटेंट्स कौन सा है? उनका एग्जाम्पल कौन सा है? उसमें कौन सा पैरासाइट आएगा? तो उसको कहते हैं डीकोलाई मीन वेलेंटिजियम कोलाई। बेटा कौन सी डिजीज कराता है? तो उसको कहते हैं सीमिएट डिसेंट्री आदि वेलेंटिजियस। चौथा ग्रुप। ये एक ग्रुप प्रोटोजोलॉजी खत्म हो गया। दूसरा ग्रुप है हेलमिंथोलॉजी, मेटोजोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी बर्ड मीन्स हेलमिंथ मीन्स वर्म्स। यहाँ बेटा 2 ग्रुप हैं वर्म्स के, हेलमिंथ्स के। वर्ड हेलमिंथ याद करें बेटा, मीन्स हेलमिंथ मीन्स वर्म्स। उसके 2 टाइप है, पिलेटी हेलमिंथ, दूसरा नीमेट हेलमिंथ। Word pileti means pileti means fillet worms or the tapeworms. Nemat helminths means word nemat means round worms. जैसे pileti helminths है, ऊपर जो fillet worm है, these are divided into the 2 groups. कौन से?
एक में सीस्टोड ग्रुप आता है, दूसरे में ट्रेमेटोड ग्रुप आता है। जो सीस्टोड है हम उनको टेप वर्म कहते हैं, जो ट्रेमेटोड ग्रुप है हम उनको फिल्यूक्स कहते हैं या ट्रेमेटोड्स कहते हैं। देखना बेटा, याद करना इसको। सीस्टोड, टेप वर्म, उनके कितने टाइप के? 4 टाइप बेटा, काम याद करें, लेकिन मैंने यहाँ 6-7 लिखे हैं। ये these are the also examples of the sea stores for your knowledge, मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आपको 4 जरूर याद करने हैं। कौन कौन से? उसके आसान नाम रखते हैं। डॉग टेप वर्म, काउ टेप वर्म, पिग टेप वर्म एंड फिश टेप वर्म। मैं आपके सबके नाम बताता हूँ। जैसे इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस है, इट इज एग्जांपल्स ऑफ द टेप वर्म और द सी स्टोर्स, इसको कहते हैं डॉग टेप वर्म। बेटा जितने भी पैरासाइट हैं उनमें ह्यूमन बीइंग एक्ट एज ए डेफिनेट होस्ट, समझ में आया? इन ऑल द पैरासाइट मैन एक्ट एज ए डेफिनेट होस्ट except in 2 parasite मैन एक्ट एज ए इंटरमीडिएट होस्ट। वो कौन से पैरासाइट हैं जिसमें मैन इंटरमीडिएट एक्ट करता है? एक इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, जिसका जो डेफिनेट होस्ट है वो डॉग है। दूसरा है प्लाज्मोडियम स्पीशीज, उसका जो डेफिनेट होस्ट है वो फीमेल मॉस्किटो है, जिसको एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो कहते हैं। So these are the examples of the sea stores or the tapeworm. Echinococcus granulosus, बेटा इसका नाम है डॉग टेपवर्म। दूसरा है डीलेटम डाइफाइलोबोड्रमलेटम, इसको कहते हैं फिश टेपवर्म। तीसरा है टीनिया सजनीटा, इसको कहते हैं काउ टेपवर्म। चौथा है टीनिया सोलियम, जिसको कहते हैं पिग टेपवर्म। देखा, 2 टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, एक पिग और दूसरा पोर्क। What is difference between the pig and the pork? Pig is a name of the animal, while pork is a name of the meat of that animal. H. nana, Hymenoplephus nana, उसका नाम है, इसको कहते हैं डार्क टेपवर्म। डार्क टेपवर्म मीन्स यामड़ा, छोटा सा, जिसको कोडू कहते हैं या क्या, उसको कहते हैं डार्क टेपवर्म। बिंद्रा सा, छोटा सा, छोटी साइज का। दूसरा है हाइमेनोलेपस डिमिन्यूटा, इसको कहते हैं रेड टेपवर्म, चूहों में जो होता है। और छठा है डाइपिलिडियम कैनिनम, इसको कहते हैं डबल पोर्ट डॉग टेपवर्म। इनमें खुदा न खासा जो पोजीशन होल्डर पूछ सकते हैं कि रेड टेपवर्म का नाम बताओ, रेड टेपवर्म का, या डार्क टेपवर्म का नाम बताओ, पिग टेपवर्म का नाम बताओ, काउ टेपवर्म का नाम बताओ, डॉग टेपवर्म का नाम बताओ। This was the examples of the sea stores or the tapeworms. दूसरा बेटा गुरु मैंने प्लेट की हेल्प बताया था आपको, ट्रेमेटोड्स, जिसको हम फिल्यूक्स कहते हैं। फिल्यूक बेटा किसको कहते हैं? फिल्यूक मीन्स जो जोगी होता मुरली नहीं बजाता, उसी मुरली टाइप स्ट्रक्चर होते हैं पैरासाइट को, जिसको फिल्यूक कहते हैं। उनका आसान एग्जाम्पल है कि दूसरा है, जब भी आप गाँव गोठ जाती हैं, दौड़ जाती है, बांधी जाती है, पत्थर जाती है, कराची जाती है, रास्ते में आपको दरख्त नजर आएंगे, उसमें चिड़िया ने एक लंबा सा घोंसला बनाया होता है, लंबा सा हाथ जैसा लंबा सा। That is resembled with the filux. It is a very good examples of the filux. Filux from trematode, इसीलिए इसका नाम रखा है filux. Filux means structure of the parasite which resembles with the bean of the jogi or the that house of the birds. झिरकी, चिड़िया का घर। कौन से एग्जाम्पल है इनके? इंटेस्टिन में बेटा कौन से ट्रेमेटोड होते हैं? इनके 4-5 ग्रुप है। एक इंटेस्टिन में होते हैं, फेशियोला बस्की लार्ज इंटेस्टिन में होता है, हीट्रोफाइड और योगोकावी मेटागोनिमस योगोकावी, वाटसोनियन वाटसोनाई। तो these are the intestinal filutes. दूसरा ग्रुप हेपेटिक लिवर में कौन से फ्लूक होते हैं या ट्रेमेटोड होते हैं? किलोनार्किसाइनेल।
Apostharcus salinensis or fasciola hepatica. These are the type of the BCQ question. लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा ट्रेमेटोड या कौन सा फ्लूक होता है, लिवर में कौन सा फ्लूक होता है। ये जो फ्लूक लिवर के मैंने आपको बताए हैं, पिलोनार्कोसाइनेसिस, अपोस्टार्कस फेलिनेंसिस और फेशुला हेपेटिका, इनमें जो कॉमन है वो है किलोनार्कोसाइनेसिस। ये खासकर एक डेंजरस डिजीज कराता है जिसको कहते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा। हाँ, ये बेसिकली में क्वेश्चन आ सकता है, which one of the following parasite is which one of the following parasite is associated with the cholangiocarcinoma। हाँ, मैं कोशिश करके इसको स्पेसिफाई करता हूँ, ले देता हूँ लो लेवल तक। which one of the following fluke or the trematode is associated with the cholangiocarcinoma that is known as the Kilonarcus। याद करें, दो ग्रुप हो गए। तीसरा ग्रुप, लंग में कौन से फ्लूक होते हैं? एक का नाम है पैरागोनिमस वेस्टरमेना, दूसरे का नाम है पैरागोनिमस अफ्रीकेनस। चौथा ग्रुप ब्लड फ्लूक्स, ब्लड में होते हैं फ्लूक्स जिसका नाम है शिस्टोसोम्स। एक होते हैं विजाइकल में, वेनस प्लेक्सिस में, वहां जाके डेंजरस डिजीज करते हैं जिसको बिलहार्जियोसिस कहते हैं या सीए यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। उसमें कौन सा पैरासाइट होता है? शिस्टोसोम हेमेटोबियम। दूसरा होता है रेक्टल आदि पोर्टल वेनस सिस्टम में, शिस्टोसोम मेल्सोनाई, शिस्टोसोम जेकोनिकम। जब भी इसकी मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊंगा ये कैसे जाके इन्फेक्शन कराते हैं, दोनों में से एक, दोनों सिरोसिस कराते हैं। सिरोसिस के दो तीन टाइप है, मैक्रोनोडुलस, माइक्रोनोडुलर एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ सिरोसिस। ये दोनों सिरोसिस कराते हैं। फाइलम, अब आखिरी फाइलम आ गया, नीमेटोड्स आर दी राउंड वर्म। ये हमने अभी जो डिस्कशन किए ये प्लेटीहेलमिन्थ से, जिसमें दो किस्म के पैरासाइट थे, एक ट्रैप वर्म था और दूसरा ट्रेमेटोड थे जिसको फ्लूक्स कहते हैं। ये दूसरा ग्रुप वर्म्स का है जिसको नीमेट हेलमिन्थ कहते हैं। वर्ड नीमेट मीन्स राउंड वर्म्स। इसके बेटा दो ग्रुप है, एक इंटेस्टिनल नीमेटोड, दूसरा टिश्यू नीमेटोड। कौन से पैरासाइट हैं, कौन से राउंड वर्म हैं तो इंटेस्टाइन में उसके नाम लूंगा मैं। एस्करिस लम्ब्रिकॉइडस, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, नेक्टर अमेरिकेनस, स्ट्रंगलाइड स्टरकोरलिस, ट्राइकेनेला स्पाइरलस एंड कैपिलेरिया फिलिपिनेंस। थोड़ा स्पेसिफाई करना, जैसे एस्करिस लम्ब्रिकॉइडस है, ये कॉमन राउंड वर्म है, हर बच्चे में होता है। इसका दूसरा नाम है जॉइंट वर्म। इट इज द लार्जेस्ट वर्म ऑफ ऑल द राउंड वर्म। जॉइंट वर्म माना जिन वर्म, जिसकी अप टू 40 सेंटीमीटर लेंथ होती है, बड़े में बड़ी। जॉइंट इसको वर्म कहते हैं, लार्जेस्ट वर्म कहते हैं, बिगेस्ट वर्म कहते हैं। नाम है एस्करिस लम्ब्रिकॉइडस। दो वर्म है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, नेक्टर अमेरिकेनस। ये जो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है और नेक्टर अमेरिकन, दोनों को मिला को कहते हैं हुक वर्म। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल उसको कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड हुक वर्म। नेक्टर अमेरिकेनस उसको कहते हैं अमेरिकन न्यू वर्ल्ड हुक वर्म। ये दो किस्म के हुक वर्म है। These are associated with the iron deficiency in स्ट्रंगलाइट स्टरकोरलिस के लिए स्ट्रंगलाइट स्टरकोरलिस और ट्राइकेनेला स्पाइरलस एंड ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरिया, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आगे सीकम में और अपेंडिक्स में इंटेरोबिस वर्मिकुलरस, जिसको कहते हैं थ्रेड वर्म और पिन वर्म, ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा जिसको विप वर्म कहते हैं। विप किसको कहते हैं? चाबुक को कहते हैं, जो घोड़े को मारते हैं, टांगे में होता है, टांगे खत्म हो गए, चाबुक खत्म हो गए, इसका नाम रखा है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो चाबुक टाइप है, तो विप वर्म कहते हैं। दूसरा ग्रुप सोमेटिक ग्रुप, टिश्यू नीमेटोड जिसको कहते हैं। उसमें मैंने थोड़ा स्पेसिफाई किया है पर्टिकुलरली, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में
se Mucela, Vencrosti, and Guruya, Mala. सबकुटल टिश्यू में कौन से नीमेटोड्स नाउन होते हैं? लोआ लोआ, कानको सरका वल्यूरस, ड्रेकन फ्यूरस, मेडी लेंस। लोआ लोआ इसको कहते हैं अफ्रीकन आई वर्म, आई में इन्फेक्शन खराब है। कानको सरका वल्यूरस, ड्रेकन फ्यूरस, मेडी लेंस जिसको गिनी वर्म कहते हैं, जिसको डेजर्ट वर्म कहते हैं, जिसको मदीना वर्म कहते हैं। मदीना is a sacred city of we people of Muslims, उनके लिए एक sacred शहर है, उसका नाम है मदीना। वहाँ शहर के अलावा बाकी आसपास पूरा डेजर्ट है, पूरा रेत है, वारी वारी आप लोग गए मैं देख कर आया। तो इसको मदीना वाले क्यों कहते हैं? This is a type of worm parasite which was discovered in that desert area, which is known as the Medina worm। और हिंदुस्तान वाले इनको डेजर्ट वर्म भी कहते हैं, सहारा वर्म भी कहते हैं, हम भी कहते हैं डेजर्ट वर्म, सहारा वर्म, मदीना। लंग में बेटा कौन से ये टिश्यू नीमेटोड है? स्ट्रंगलाइट, स्ट्रक्टोरलिस। मीजेंट्री में कौन से है? मीजेंट्री में दो एक पैरासाइट होते हैं, डायपिटलुनिमा पर्स्टन्स, मेंसोनेला ओजार्डी। कंजक्टिवा में कौन से रहते हैं? लोआ। Thank you very much. Thank you very much. Two of my friends, one is the Palu, other one is the Pappu. Both are. Thank you very much. सेव करें, फिर अपना मुझे ना